दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर मी डूइंग दिस लाइव। मैं पहली बार ये यूपीएससी टाइम इंडिया के थ्रू लाइव सेशन कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस लाइव सेशन विथ यू गाइज, सो help me with it. Come up with your questions, ask me whatever you have to ask. And generally, maybe there are 11 people, maybe if there are 15 odd people, then we can start the conversation. और मैं आई डोंट बिलीव इन बने बनाए क्वेश्चंस की सिलेबस कैसे कवर करना है, कौन सी बुक लिस्ट है। आई विल ड्वेल अपॉन ऑल दैट, थोड़ा थोड़ा मैं टच करूँगा, बट आई वुड लाइक कि आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछें, आस्क मी क्वेश्चंस। आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट as much as possible. My name is Abhishek and I am an Indian Revenue Service Officer. मैं भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी हूँ. I have cracked UPSC Civil Services examination in 2019. So 2019 was the year when I cracked the examination. My all India rank was 244 and that was my second attempt going into the examinations. And before that I had written the examination. I could not get into the list. Geography was my optional, as I think I mentioned. I will talk about my UPSC journey. सबसे पहले मैं अपने UPSC journey के बारे में बात करूँगा and then maybe we'll go ahead. So I am an engineer by profession. I have previously worked in IT firm. मैंने IT software industry में work किया है and I prepared okay, so some of the known faces are there. I know Dr. Atul, welcome. So I was working while I prepared for UPSC examination and I'm a very average student, not बहुत ज़्यादा. I have never been a topper in academics, though good student because I have made sure that I get good grades. But I have been an average student, not that hardworking also, but yeah, a little disciplined. So my UPSC journey, it started way into the college, and that's where I will connect to the fact wherein how I started my UPSC preparation and how to prepare when you are in college. जब आप college में हो तो how are you going to prepare? So I was talking about my UPSC preparation journey. So nothing out of the box. I always wanted to serve the country. I always मेरा एक ही motive था that if I can serve the people of this country in any way, any which way possible, मैं वो करूँगा. आई एम एन एल्यूमनाई ऑफ सैनिक स्कूल कपूरथला, पंजाब से मैंने स्कूलिंग की है. एज लक वुड हैव इट, जिसको कहते हैं कहीं कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है, तो आई कुड नॉट क्रैक इनटू द नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन. एनडीए एग्जामिनेशन नहीं क्रैक हो पाया फॉर मेडिकल रीजंस एंड जस्ट किस्मत में था जस्ट. So that took me towards engineering. I started preparing for engineering examinations and pursued engineering from one of a good private university of this country. And then I was placed into one of the major software firms in this country. I have worked with software industries for 4.5 years. And then I was preparing for UPSC. I started preparing for UPSC examination somewhere towards the fag end of my college. कॉलेज के अंत के आसपास मैंने UPSC की प्रिपरेशन शुरू करी. प्रिपरेशन एज इन एक बेसिक ओवरव्यू. मन में ये मोटिव था कि चलो आई हैव टू डू समथिंग विच इज़ इनटू पब्लिक सर्विसेज. पब्लिक सर्विसेज में ही कुछ करना है, ऐसा मेरा मोटिव था. बट देन एट द सेम टाइम एक रियलिटी होती है, दैट इज़ हाउ डू यू सी योर सेल्फ फिनेंशियली. आई वॉज प्लेस्ड इन टू अ फॉर्म सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में. मैंने वहाँ वर्क शुरू किया एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. आई chose my optional as geography because मेरा इंटरेस्ट था. आई हैव परस्यूड इंजीनियरिंग इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो वहाँ से समवेयर जोग्राफी वॉज अ सब्जेक्ट जो बहुत ही टेक्निकल था. तो आई थॉट ये एक सब्जेक्ट है जो मैं चुन सकता हूँ, जो मुझे ग्रास्प करने में आसानी होगी. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. अब दूसरा प्रश्न ये है कि UPSC प्रीलिम्स की मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी. व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, जैसे UPSC प्रिपरेशन मैंने शुरू किया, पहली चीज़ ये थी कि मेरा मोटिव बहुत ही क्लियर था. मोटिव ये था कि आई डोंट वांट टू बी द जीनियस ऑफ द सब्जेक्ट. मुझे हर टॉपिक में अपने आप को एक एक्सपर्ट नहीं बनाना. मुझे बस ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि मैं UPSC का जो सिलेबस है उसको स्टिक करूं, उसको सिक्वेंशली मैं कवर करता जाऊं एक एक करके. और मैंने वही किया. आई टुक द सिलेबस, आई नोटेड इट डाउन. मेरे पास एक कंसाइज बुक लिस्ट थी जिसको मैंने कवर किया. उसी बुक
बार बार मैंने रिवाइज़ किया। पूरे प्रिपरेशन के टेन्योर में मैंने कभी अपने बुक्स चेंज नहीं किए, एक बुक से दूसरे बुक की तरफ मैंने कभी अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं किया, और आई स्टिक टू द बुक लिस्ट दैट आई हैड। मैंने खुद के नोट्स बनाए जिनको मैं रेगुलरली रिवाइज़ करता था, और मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट, ये बहुत ही ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट शुड बी यू नो, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट ले सकें उतना ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने बहुत सारे, आई थिंक जब मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स का पहला अटैम्प्ट था तो मैंने करीब 100 मॉक टेस्ट, 95 to 100 मॉक टेस्ट मैंने अटैम्प्ट किए, एंड देन आई वेंट फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप बात करें कि कितने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी होती है, आई हैव हार्डली स्टडीड 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे। उसके बाद इट इज़ ईज़ी, अगर आप 6 से 8 घंटे डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते हैं तो इट इज़ ईज़ी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हैज़ कम फ्रॉम यू गाइज इज़ कि मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में। अगेन, जब आप यूपीएससी के लिए एक सेलेक्टेड बुक लिस्ट के थ्रू जाते हैं, एक आपने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करा होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप एनसीईआरटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। 6 to 12 की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके लिए इस माध्यम से ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एनसीईआरटी कवर किया हुआ है तो आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वो इसलिए ज़रूरी है कि हर क्वेश्चन में जिस कॉन्टेक्स्ट में वो पूछा गया है उसका फंडामेंटल, उसका जो बेसिक प्लेटफॉर्म बनेगा, उसका जो जिस स्तर की नॉलेज आपको चाहिए वो समझ आप में एनसीईआरटी से जनरेट होगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटीज़ को ज़रूर कवर करें। मैं एक एक करके क्वेश्चंस लेता हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि आपने यूपीएससी की शुरुआत कैसे करी और कब करी। मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहूँगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए लोगों के अलग अलग मोटिव होते हैं, और मेरा ये मानना है कि आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी आप सिर्फ तभी कीजिए जब आप सच में सोसाइटी की सेवा करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में वो इंटेंट है तो वो इंटेंट जनरेट करेगा एक इंक्विजिबिलिटी कि आप देश को और बेहतर जानें। आप देश की सेवा तभी कर सकते हैं जब आप देश को बेहतर जानने की कोशिश करेंगे। और इस एग्ज़ाम का अगर आप सिलेबस देखेंगे, वो इंसान को इसी मकसद की तरफ ड्राइव करता है। वो बार बार अपने हर सब्जेक्ट के माध्यम से यूपीएससी कोशिश ये करती है कि आपके अंदर देश की उपलब्धियों को, देश की समस्याओं को, और हर तरह की जो परिस्थिति इस देश में है, समाज में है, उसको आप समझ सकें। आपके अंदर एक अनबायस्ड, जिसको कहते हैं कि किसी के प्रति द्वेष या किसी के प्रति एक स्टिग्मा नहीं होना चाहिए आपके मन में, और आप उस भावना के साथ अगर इस देश को समझ पाते हैं तो वही यूपीएससी की मांग है। दैट इज़ द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन, कि आप अपनी कंट्री को बेहतर जानें। नो योर कंट्री बेटर, दैट्स द नीड ऑफ दिस एग्जामिनेशन। नाउ मेरे अंदर ये इंटेंट हमेशा से था, मे बी बिकॉज आई हैव बीन कंडीशन दैट वे। मैंने बचपन की पढ़ाई, जैसा कि मैंने बताया कि यूपीएससी के पहले मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशन की तैयारी की। मैं सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब का पढ़ा हुआ हूँ। तो उसने मेरे अंदर ये इंक्लूसिविटी जगाई कि किसी भी तरीके से मुझे देश की सेवा करनी है, एक ऑफिसर के तौर पर, एक अधिकारी के तौर पर। और यूपीएससी से बेहतर माध्यम इसका कोई भी नहीं है। देयर इज़ नो बेटर मीडियम दैन यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। इसके बाद मैं जो कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस हैं वो लूँगा पहले। तो ये क्वेश्चन ये है कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि यू शुड नो योर कंट्री बेटर। आपको अपने देश को बेहतर जानने की ज़रूरत है, और तभी आप इस एग्ज़ामिनेशन में बेहतर उत्तर लिख पाएंगे। प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट है, लेकिन जो मेंस एग्ज़ामिनेशन है यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है, वो ये डिसाइड करती है कि आप चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। कैन यू प्रेजेंट द प्रॉब्लम बेटर, और हर समस्या में आप अपने हिसाब से क्या समाधान जोड़ सकते हैं। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपकी समझ, आपकी प्रस्तुति, किसी भी समस्या को कैसे आप प्रेजेंट करते हैं, और आप उसके लिए क्या समाधान लेकर आ रहे हैं सोसाइटी में, ये यूपीएससी आपके अंदर ढूंढने की कोशिश करता है। सो यूपीएससी इज़ लुकिंग फॉर एन एप्टीट्यूड wherein you are a potential officer for this country.
जहाँ पे यूपीएससी को ये लगता है आपके उत्तर के माध्यम से कि आप एक बेहतर अफसर बन सकते हैं, आप देश की समस्याओं को बेहतर हैंडल कर सकते हैं, यूपीएससी आपको चुन सकती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए करंट अफेयर्स कितना ज़रूरी है। जब आप डे टू डे परिस्थितियों को, आज दिन भर में देश में कौन सी ऐसी चीज़ें हुई जिसका समाज पे, जिसका जिसका एक आम नागरिक की ज़िंदगी पे असर पड़ेगा, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो शायद आप यूपीएससी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। सो करंट अफेयर्स आर वेरी फंडामेंटल। नाउ करंट अफेयर्स कवर करने के दो तरीके हैं। देर आर टू वेज टू कवर द करंट अफेयर्स। फर्स्ट इज दैट डेवलप अ हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। ये बात आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए। आपको एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर से, फॉर एग्जांपल द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर 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 आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ भी रहे हैं और उसमें जो समस्याएं दी हुई है, उसमें जो इश्यूज़ पे डिस्कशन हो रहा है, अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आप उसको अपने अंदर इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उसको अपने तरीके से नहीं परख पा रहे हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का ये पूरा एक्सरसाइज बेकार हो जाएगा। सो एक तरीका ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उनको अपने तरीके से समझिए और उस पर छोटा सा नोट बनाइए जहाँ पे आपका इंटरप्रिटेशन, आपका जो एनालिसिस है उस इशू का, वो लिखा हो। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप महीने के अंत में या सप्ताह के अंत में जो उस सप्ताह की करंट अफेयर्स है, और ये शॉर्टकट एक तरीका है, स्मार्ट स्टडीज़ शुड ऑलवेज बैक द हार्ड वर्क। आपकी मेहनत को थोड़ा स्मार्टनेस अगर बैक करे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर आप सप्ताह के अंत में या महीने के अंत में अगर आप महीने भर का न्यूज़पेपर एनालिसिस या फिर करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, जैसा कि बहुत सारी मैगजीन्स हैं आजकल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स निकालती हैं और ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से ये सभी को फ्रीली अवेलेबल हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए और उनके बेसिस पे आप अपना एक एनालिसिस नोट्स बनाइए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर ओन नोट्स। दो चीज़ें होंगी इससे। पहला ये कि आपके रिवीजन में आपको टाइम कम लगेगा। जब आप एक्चुअली एग्ज़ाम के लिए जा रहे होंगे 1-1.5 महीने पहले, तो इट विल टेक लेस टाइम। और दूसरा ये कि इससे आपकी राइटिंग हैबिट बढ़ेगी, जो कि इस एग्जामिनेशन की वन ऑफ द मेन डिमांड है कि आप अच्छे लिख पाएँ। यू शुड हैव गुड राइटिंग कैपेबिलिटीज़। उसके लिए मेंस एग्जामिनेशन का टेस्ट होता है, लेकिन वो पोटेंशियल आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, जब आप डेली बेसिस पे कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, ये हैबिट बनाएंगे कि आप न्यूज़पेपर में जो भी पढ़ें या फिर जो भी किताबें पढ़ें, उससे आप अपने नोट्स बनाएं और उसको आप कैटेगराइज करके रखें। तो ये है रीज़न कि लोग करंट अफेयर्स पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस जो लोगों ने पुटअप करें। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या यूपीएससी के लिए कोचिंग ज़रूरी है? नहीं, यूपीएससी के लिए कोचिंग ज़रूरी नहीं है। आई विल रिपीट इट अगेन, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू हैव the support of a coaching institute for this examination, but this is very important कि यूपीएससी के लिए आपको कहीं से किसी का भी गाइडेंस आपको मिलता रहे। कोचिंग ज़रूरी नहीं है, गाइडेंस ज़रूरी है, मेंटरशिप ज़रूरी है यूपीएससी के लिए। सर क्या आपने कोचिंग ली थी? नहीं, मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया था। एज आई सेड, आई वॉज वर्किंग, तो मेरे पास ये एक लिमिटेशन था कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कंटिन्यूसली अपनी अटेंडेंस नहीं लगा सकता था। हाँ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे हमेशा खुद पर डिपेंड रहने की आदत पड़ी, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि मेंटरशिप नहीं मिला मुझे। आई कुड नॉट गेट अ गुड मेंटोर फॉर माई प्रिपरेशन। और आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा मेंटोर मिले इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। तो ये आप पे पर्सनली डिपेंड करता है आप कोचिंग लेते हैं या नहीं। कोचिंग ज़रूरी नहीं है, मेंटोरशिप गाइडेंस ज़रूरी है। तो इसको आप जैसे समझना चाहें उस हिसाब से समझें। अगला क्वेश्चन ये है कि सर मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर है और मेरा सब्जेक्ट बीएससी कंप्यूटर साइंस है और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। वेरी गुड, एनी सब्जेक्ट, यू हैव टू जस्ट बी अ ग्रेजुएट टू राइट दिस एग्जामिनेशन। आपका सब्जेक्ट आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हों, किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हो, वो किसी ना किसी वे में आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन में बेनिफिट करेगा। तो आप इस चीज़ पे भरोसा रखिए कि सब्जेक्ट यहाँ पे मैटर नहीं करता है। आपकी क्यूमुलेटिव नॉलेज, जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं, उसमें बचपन की चीज़ें हो गई, स्कूल की चीज़ें हो गई, कुछ कल्चरल चीज़ें हो गई जो आप अपने घर पे, अपने परिवार से, अपने
एरिया में, सोसाइटी में, अपने राज्य में सीखते हो, हर चीज़ यहाँ पे काउंट करती है। तो हाँ, एनीबडी कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हिंदी में एग्ज़ाम देना सही होगा या इंग्लिश में? देखिए, आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट टू यू, मैं ईमानदारी के साथ इसका जवाब दूंगा। इससे यूपीएससी में साल दर साल हिंदी मीडियम से भी लोग क्वालिफाई करते हैं और लोग इंग्लिश मीडियम से भी क्वालिफाई करते हैं। मेरा ये मानना है कि इंग्लिश आज की सोसाइटी की एक डिमांड बन गई है। इट इज़ अ डिमांड ऑफ द सोसाइटी। आप इस देश में किसी भी कोने में जाइए, अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो ऑफिशियल कामकाज में आप इफ़िशिएंट हो जाएंगे। हिंदी की लिमिटेशन ये है कि उत्तर भारत में प्रचलित है, दक्षिण भारत में उतना प्रचलित नहीं है। हिंदी से भी लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, बट वो नंबर बहुत ही कम है। तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इट इज़ गुड दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन इन हिंदी, बट इंग्लिश इज़ द नीड ऑफ द आवर। इंग्लिश ज़रूरत बन गई है, and it has nothing to do with our being our mother tongue or being the most popular language. It is the reality. तो इस रियलिटी को अगर हम एक्सेप्ट करें और अगर हम कोशिश करें कि अगर हम में ये पोटेंशियल है कि हम इंग्लिश के थ्रू क्वालिफाई कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। बशर्ते बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने हिंदी माध्यम से इस एग्ज़ाम को टॉप किया है और बहुत अच्छी रैंक लेकर आए हैं। केस इन पॉइंट 2015 बैच के ऑफिसर हैं निशांत जैन सर, अगर आप उनको जानते हो तो। ही वॉज वन ऑफ द टॉपर्स वाया हिंदी मीडियम। तो बिल्कुल आप हिंदी से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। सर, नेगेटिव थॉट को कैसे अवॉइड करें, लाइक डिप्रेशन और समथिंग? देखिए, ये जो एग्ज़ामिनेशन है, ये एग्ज़ामिनेशन आपको सिर्फ एज अ पर्सन आपको सिर्फ किताबें पढ़ने का ये ज़रिया नहीं है कि आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। दिस एग्ज़ामिनेशन इज़ समथिंग दैट चेंजेस यू एज एन इंडिविजुअल। एक इंसान के तौर पर यह आपको बेहतर बनाता है, और बेहतर इंसान बनने का मतलब ये है कि आप सिर्फ फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से आप स्ट्रॉन्ग बने। तो नेगेटिव थॉट्स को भगाने का एक तरीका ये है, मैं हर रोज़ जब सुबह उठता था, मैं अपने आप को मिरर में देखता था और मैं हमेशा ये सोचता था कि एक दिन यहाँ एक ऑफिसर खड़ा होगा। यू नीड टू लुक योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट बीइंग एन ऑफिसर। यू हैव टू थिंक अबाउट एवरी प्रॉब्लम एज एन ऑफिसर। आप इसको एक नॉर्मल स्टूडेंट के तौर पर मत देखिए। आप अपने अंदर अगर पोटेंशियल ऑफिसर को देखते हैं, तभी दुनिया आपको एज एन ऑफिसर रिकॉग्नाइज कर पाएगी। सो दिस एग्जामिनेशन इज समथिंग विच टेस्ट योर एप्टीट्यूड टू बी एन ऑफिसर, और उसके लिए कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हमें होनी चाहिए। अगर आप में वो क्वालिटीज़ हैं तो आपके अंदर से नेगेटिव थॉट्स बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगे। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, ये बहुत ज़रूरी है। इस एग्जामिनेशन की बात करें या किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है तो यू विल बी सक्सेसफुल, मोर और लेस आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे। दूसरा, यू हैव टू बी पंक्चुअल। अगर आप डिसिप्लिन्ड है लेकिन आप टाइम के पाबंद नहीं हैं, तो आपने जो रूटीन बनाई है उसको आप फॉलो भी करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर 100% फॉर दैट। सो ये दो क्वालिटी है। और तीसरा, और जो सबसे ज़रूरी क्वालिटी मैं मानता हूँ, वो इस चीज़ पे नहीं डिपेंड करता है कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं, ऑफिसर बनते हैं नहीं बनते हैं। वो इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतर इंसान हैं। और वो क्वालिटी ये है कि आपके अंदर देश के लिए, समाज के लिए, आम नागरिक के लिए कंपैशन होना चाहिए। आपके अंदर से ये भावना होनी चाहिए कि आप किसी की मदद कर सकें। और अगर ये भावना, ये इमोशन आपके अंदर है, आपके आंसर्स जो आप मेंस एग्जामिनेशन में लिखोगे वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। सो आई थिंक दीज आर द 3 क्वालिटीज़ दैट आई बिलीव इन। मेरा भरोसा इन 3 क्वालिटीज़ पे है और मैं इस पे अडेयर करता हूँ। 1 इज़ डिसिप्लिन, 2nd इज़ पंक्चुअलिटी एंड 3rd इज़ कंपैशन। नाउ अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, विच सेज ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें। तो हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपल हु वांट टू पे अटेंशन कैन पे अटेंशन राइट नाउ। ऑप्शनल पेपर कैसे चूज़ करें, मैं अपनी बात करूँगा। आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ। जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था और मेरे सब्जेक्ट्स, आई वॉज एन इंजीनियर इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इंजीनियरिंग की है। तो मेरे लिए ये क्वेश्चन था कि मैं कौन सा ऑप्शनल चुनूँ। ज्योग्राफी एक ऑप्शन था मेरे पास कि मैं ज्योग्राफी चूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था।
दूसरा कि हिस्ट्री मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो आई हैड डीप इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल। और कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट है जो आप परसू कर सकते हैं। ये 3 सब्जेक्ट्स थे मेरे पास, लेकिन मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है। सो व्हाट आई डिड वाज मैंने तीनों सब्जेक्ट्स के सिलेबस डाउनलोड कर लिया इंटरनेट से। आई डाउनलोडेड द सिलेबस, मैंने सिलेबस डाउनलोड किया और उसके एक एक कीवर्ड को ध्यान से देखा, एक एक कीवर्ड को ध्यान से पढ़ा, और मैंने फ़िल्टर आउट किया कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसके कीवर्ड्स मुझे ऑलरेडी थोड़े बहुत पता हैं, जिससे मैं फेमिलियर हूँ थोड़ा बहुत, मतलब मैंने कभी बचपन में पढ़ा हो या कभी स्कूल लाइफ में या कभी कॉलेज लाइफ में मैंने उन कीवर्ड्स के बारे में सुना हो। तो वैसे सब्जेक्ट मुझे हिस्ट्री और ज्योग्राफी लगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो कीवर्ड्स थे वो मेरे लिए नए थे, और ऐसे मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एलिमिनेट कर दिया। यूपीएससी के सिलेबस के आधार पर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद मैंने पिछले 2, 3, 4 सालों के हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखना शुरू किया, मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को देखना शुरू किया। और क्वेश्चंस के साथ भी मैंने यही एक्सरसाइज करी कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। मैं कंप्लीट नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन क्वेश्चन से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, मैंने उन क्वेश्चंस को टिक करना शुरू किया, उन क्वेश्चंस को फिल्टर आउट किया, और मैंने देखा कि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन से कंफर्टेबल हूँ। तो मैंने 2 चीज़ें करी यहाँ पर। पहला ये कि मैंने सिलेबस निकाला और देखा कि मैं किन सब्जेक्ट्स के सिलेबस से ज़्यादा फेमिलियर हूँ, मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में अगर पता है तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फिर मैंने उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस में मेरी फेमिलियरिटी ज्योग्राफी में ज़्यादा थी, तो मैंने इसलिए ज्योग्राफी को चुना। ये एग्ज़ामिनेशन इस चीज़ को नहीं डिटरमाइन करता है, ये नहीं ढूंढने की कोशिश करता है कि आप किस सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हैं। दिस एग्जामिनेशन ट्राइज टू डिसाइड कि उसके सिलेबस में किस सब्जेक्ट में आप बेहतर आंसर लिख सकते हैं, और मेरे लिए वो सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। सो दैट्स हाउ आई चोज ज्योग्राफी। आई थिंक ये एक्सरसाइज आप भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर डे कितने आवर स्टडी करना एनफ है। बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, जो मोटिवेशनल टॉक्स लेते हैं, एंड ऑलवेज कम्स अप कि 12-14 घंटे 16 घंटे लोग पढ़ते हैं। मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ, आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। आई पर्सनली बिलीव दैट जो ह्यूमन कैपेसिटी है, ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी है, वो 6 से 8 घंटे के लिए मोर देन एनफ है। तो आप 6 से 8 घंटे पढ़ाई कीजिए, 6 से 8 घंटे अपना बेस्ट दीजिए, और दैट इज़ सफिशियंट टू कवर द। एक और टॉपिक पढ़ सकते हैं, आप पढ़ें। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। दीज 2 थिंग्स दैट आई personally believe about the amount of time that you should give is generally 6 to 8 hours, and on exam days 10, 12, 14 hours based on your capacity. So this is what you can do about number of hours. Next question is, sir, can you motivate non-UPSC students for NEET and PG examination? See, I personally believe that कोई भी एग्जामिनेशन हो, be it any examination, बहुत सिंपल है। अगर आप उस एग्ज़ाम को लेके मोटिवेटेड हैं, पहली चीज़ है मोटिवेशन। आपके अंदर हमेशा इस बात को लेकर खुशी होनी चाहिए कि आप ज़िंदगी में कुछ नया हासिल करना चाहते हैं, और उस नया हासिल करने का माध्यम सो एंड सो एग्जामिनेशन है, पहली चीज़। दूसरा है डिसिप्लिन। एज आई सेड पहले भी कि अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन्ड हैं, अपने गोल को लेके, जो आपने मकसद चुना है उसको लेकर अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, तो आपके अंदर वो फोकस और वो एंथुजियाज़म, एनर्जी जिसको कहते हैं, वो अपने आप आ जाएगी। और तीसरी है पंक्चुअलिटी। हर इंसान प्लानिंग कर लेता है, बट हम उस प्लान पर हमेशा खड़े नहीं उतर पाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम टाइम के पाबंद नहीं हैं। तो अगर आप टाइम के पाबंद हैं, इफ़ यू आर punctual about it, then it will be a cakewalk for you. So these 3 things you can focus if you are preparing for any examination, be it NEET, be it UPSC examination, be it SSC examination. Even if you are not able to crack the examination, you will come out as a better person, and that is more important than cracking any examination. Next question ले लेते हैं। How preparation can be managed with college? What would you have done if you were to prepare?
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप कॉलेज के दिनों में ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है या फिर कोई भी एग्ज़ामिनेशन देना है, तो आपको एक हेड स्टार्ट मिल गया। आपने औरों से पहले सोचना और औरों से पहले स्टार्ट कर दिया है। कॉलेज में आपके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। कॉलेज के खुद के एग्जामिनेशन होते हैं, टेस्ट सीरीज़ होते हैं, खुद के क्विजेज़ होते हैं, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट है कि आप फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन कर सकें। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आप कॉलेज में भी कर सकते हैं। पहली है, आप करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए, एसेज और अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज एट द एंड ये जो एग्जामिनेशन है ये अच्छा लिखने की आपकी कला पर फोकस करता है। प्रीलिम्स इज़ जस्ट अ फिल्टर, मेंस इज़ द मेन डील। मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस में आपकी राइटिंग स्किल्स चेक होती हैं। तो हाँ, अच्छा लिखने की कोशिश आप कॉलेज के दिनों से शुरू कर सकते हैं, स्कूल के दिनों से शुरू कर सकते हैं, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। उसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, चीज़ों पर अपनी कोई भी मुद्दा है जो देश विदेश समाज को अगर अफेक्ट करता है, इफ़ इट इज़ इम्पैक्टिंग द सोसाइटी एट लार्ज, यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन इट लाइक एन ऑफिसर। दो तरीके से आप सोच सकते हैं। एक जो लेमैन के टर्म में कि ये पार्टी ऐसा कह रही है, वो पार्टी ऐसा कह रही है, ये लोग सही हैं, वो लोग गलत हैं, जो पान की दुकान पर डिस्कशन होता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें एक ब्यूरोक्रेट के नज़रिए से सोचना होगा कि अगर देश में अभी यह समस्या है तो इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। और जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देंगे, यू विल मोर और लेस स्टार्ट थिंकिंग ऑन द लाइन्स दैट यूपीएससी इज़ लुकिंग फॉर। आप उस पद चिन्ह पे चलना शुरू कर देंगे जो यूपीएससी असल में चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, मैं फाइनल ईयर में हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ, मुझे बताएं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लूँ। देखिए, देर आर सो मैनी पीपल हु आई थिंक कॉमर्स परस्यू करते हैं। अगर आपने कॉलेज के 3 साल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दिए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने उसमें कुछ तो पढ़ाई की है, उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। उस सब्जेक्ट को अच्छे से, उस सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, उस सब्जेक्ट को समझिए और ये देखिए कि क्या आप उसके यूपीएससी सिलेबस को अलाइन कर पाते हैं या नहीं, क्या आप यूपीएससी सिलेबस की समझ आप में है या नहीं। अगर नहीं है तो यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर अदर सब्जेक्ट्स, यू कैन ऑब्वियसली चूज अदर सब्जेक्ट्स, बट देन आई थिंक अगर आपने 3 साल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दिया है और वो सब्जेक्ट यूपीएससी के ऑप्शनल की लिस्ट में है, तो यू शुड ऑलवेज गिव इट अ सीरियस थॉट। आप उसके बारे में सोचें कि आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर, हाउ टू स्टार्ट। देखिए, मैंने स्टार्ट इसीलिए किया था, इस देश में हर साल 800 से ज़्यादा ऑफिसर सिविल सेवा की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं और ऑफिसर बनते हैं। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ऑफिसर बन जाना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हाउ वी कंडक्ट आवर सेल्फ आफ्टर वी आर एन ऑफिसर, व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके अंदर इस बात की समझ है कि आप अपने आप को उन लोगों में देख देख पाते हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने जो भी बचपन से पढ़ाई की है, जो भी आपने अच्छे वैल्यूज़ अपनी ज़िंदगी में ऐड किए हैं, उससे देश की सोसाइटी और बेहतर बन सकती है, समाज को आप कुछ दे सकते हैं, तभी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। वरना 800 ऑफिसर्स हर साल निकलते हैं। तो मेरी ये समझ है कि ऑफिसर बनने में कोई उपलब्धि नहीं है, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना सच में इट इज़ एन अचीवमेंट, बट इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ एन अचीवमेंट, इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। इस देश में बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं हम लोग इस बात को कि किसी ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, बट आई थिंक इस देश में इस चीज़ को ग्लोरीफाई करना और भी ज़रूरी है कि व्हाट पीपल कैन डू एंड व्हाट पीपल कैन अचीव आफ्टर बीइंग एन ऑफिसर। तो आई थिंक अगर आपके अंदर वो भूख है कि आप कुछ कर सकें सोसाइटी के लिए, तो आप प्रिपरेशन शुरू करें। Some of my college juniors have joined. Thank you so much, Pradeep, Atul, Laikur Rahman, Rashid. They are my juniors. I have spent considerable time with them. It's good to see them doing so well in their lives. I will move on to next question. हाउ मच टाइम इन यूपीएससी प्रिपरेशन, कितना टाइम दें प्रिपरेशन के लिए। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और अगर लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इफ़ योर लक इज़ इन योर फेवर, 1 साल की प्रिपरेशन इज़ मोर देन एनफ टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाई। बट अदरवाइज ऑल्सो यू शुड बी वेरी फोकस्ड। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 1 ईयर इज़ मोर देन सफिशिएंट।
1 year plus your luck. I would always say luck एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस एग्जामिनेशन में. Somebody has asked सर IIT ज़रूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. आप देश के किसी भी कॉलेज से एक सिंपल ग्रेजुएट होके इस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं और इस एग्ज़ामिनेशन को एस कर सकते हैं. आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. और आई डोंट थिंक IITs फॉर दैट मैटर, आई थिंक लोग जो देश के छोटे छोटे कोने और छोटे छोटे पॉकेट्स से आकर कंट्रीब्यूट करते हैं सिविल सेवा ज्वाइन करने के बाद, they have done immense as compared to people who are just from IIT and from technical. Of course, people from IITs are brilliant, they have better aptitude, they can ace this examination because they are very hard working. But at the same time मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप IIT से होकर ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, which subject we start at first and what if we start with Lucent? It is a good book, it is a general knowledge book. तो आप जनरल नॉलेज से स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपको एक स्टार्ट देगा. बट देन स्टार्ट इज जस्ट वन स्टेप, देयर आर 100 मोर स्टेप्स दैट यू हैव टू गो. आपको 100 कदम और लेने होंगे. उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको यूपीएससी के सिलेबस की समझ हो, वो सिलेबस किन किताबों द्वारा कवर की जा सकती है आपको इसकी समझ हो, और आप उन किताबों को अच्छे से पढ़ें, ये भी बहुत ज़रूरी है. तो ल्यूसेंट इज़ अ गुड स्टार्ट बट इट इज़ जस्ट अ स्टार्ट. उसके बाद हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी सर, कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें. अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखिए. अगर आप अपने अंदर एक ऑफिसर नहीं देख पा रहे हैं तो दुनिया नहीं देख पाएगी. सो बिलीव दैट यू हैव एन ऑफिसर विद इन यू एंड बिहेव लाइक दैट. बी वेरी डिटरमिन्ड कि आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए. आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, वो बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम होते हैं. और अगर उनके अंदर ये विश्वास है कि मेरा बेटा, मेरा दोस्त, मेरा भाई कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन कहीं नहीं मिलेगा. वैसे लोग मोटिवेशन के लिए यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं. आई एम ऑल्सो इन फेवर ऑफ दैट, बट अपना बहुत ज़्यादा वक्त इन सब चीज़ों पे बर्बाद ना करें. एक क्वेश्चन है, हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. क्वेश्चन पूछा है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें. मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है. सोशल मीडिया इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. आप वही टाइम आप किसी अच्छी किताब को दें, किसी अच्छे बुक को दें. अगर कोई बुक नहीं मिल रही है तो NCERT बुक को दें, एंड यू विल बी एबल टू बी अ बेटर प्रिपेयर्ड एस्पिरेंट देन एनीवन हु इज़ यूजिंग लॉट ऑफ सोशल मीडिया. हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं दे कैन नॉट क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, बट आई पर्सनली फील दैट सोशल मीडिया इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम if you are preparing for UPSC examination. Sir, please give source of international relation books. See, personally I would say that I have not really gone through a dedicated book for international relation. I was a geography optional student, so I had a fair ideas of the countries around the world, placing of them geographically, their geographical features. For that I have used the geography optional books, and based on my knowledge of geography, geographical theories, international location of the countries and how they are connected with India, I have just connected that with the current affairs. So current affairs में जो भी मैं IR के बारे में पढ़ता था वो, plus world history जो basically NCERT covers whole of it, और geography मेरा optional subject जो था, इन तीनों को मैंने connect किया है, and I have been able to do well with my international relations. So personally I have not pursued a dedicated book for that. Otherwise, if you want to pursue a book, there is a list of books that you can go for. But I would personally suggest कि जब कम चीज़ों में आपका काम चल रहा हो, don't add too much books into your kitty. Next question is, sir, which type of English language for UPSC? Very simple language. भाषा को जानने का फल ये होना चाहिए कि जिससे आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको आप चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ आए. अगर मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता हूँ लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये हो कि आप समझ ही ना पाएँ, तो फिर इंग्लिश बोलने का क्या फ़ायदा. या फिर अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और मेरी भाषा को आप समझ ही ना पाएँ, तो फिर क्या फ़ायदा. इसलिए यूज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज, यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेज वाइल राइटिंग योर आंसर्स. छोटे सेंटेंसेज का इस्तेमाल करें. 8 से 10 वर्ड मैक्सिमम एक लाइन में होनी चाहिए, एक सेंटेंस में होना चाहिए, तो दैट विल बी सफिशिएंट. और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें. हाउ टू स्टडी जियो पॉलिटिक्स. गो थ्रू
जोग्राफी बुक्स आई थिंक एनसीईआरटी जोग्राफी विल हेल्प यू। 6th 7th 8th में बहुत ज़्यादा कवर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट सविंद्र सिंह में है कवर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्पेक्ट्रम जोग्राफी आती है विच इज़ अ गुड बुक इफ़ यू वांट टू जस्ट रीड जियो पॉलिटिक्स। करंट अफेयर्स, आई थिंक जो लोग आईआर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आपका ध्यान करंट अफेयर्स पे बेहतर हो। आप एडिटोरियल्स को अच्छे से पढ़ें। डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जैसे अफगानिस्तान में अभी क्या हो रहा है। रिसेंटली इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड फॉर टॉक्स ऑन अफगानिस्तान इन रशिया फॉर एग्जाम्पल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया, व्हाट इज़ इंडियाज़ लोकस स्टैंडाई इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन इन अफगानिस्तान, और वो आपको ऐसे पता रहेगा जब आप करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट इज़ सर जी बुक लिस्ट प्लीज़। हाँ, बुक लिस्ट के बारे में मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली ये कि देर इज़ इनॉर्मल मटेरियल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे हर किसी ने अपनी बुक लिस्ट डाल रखी है, आप कोई भी एक चुन सकते हैं। दूसरी ये कि इतनी लंबी लिस्ट भी मत बना लीजिए। डोंट मेक अ लिस्ट विच इज़ सो लॉन्ग दैट यू आर अनेबल टू कवर दैट। आप उसको कवर ही ना कर पाएँ तो फिर क्या फ़ायदा। तो इन दो चीज़ों का ख्याल रखिए। ज्योग्राफी के लिए जैसा कि मैंने कहा, एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में क्लास 11th की जो ज्योग्राफी बुक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक दैट यू विल हैव। हिस्ट्री के लिए अगेन एनसीईआरटीज़ आप पढ़ें। मॉडर्न हिस्ट्री पे यूपीएससी का एम्फेसिस बहुत ज़्यादा होता है, एंड फॉर दैट यू कैन ऑल्सो रीड बिपिन चंद्राज इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये दो बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक है विच इज़ स्टैंडर्ड बुक, गुड बुक, कवर्स अ लॉट। बट देन क्योंकि इन्वायरमेंट इज़ वेरी बर्निंग टॉपिक एवरी ईयर, इनफैक्ट एवरी मंथ देर इज़ समथिंग ह्यूज गोइंग ऑन अक्रॉस द वर्ल्ड, तो आपकी नज़र करंट अफेयर्स पे होनी चाहिए। इन्वायरमेंट के लिए करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी के अलावा आपको एग्रीकल्चर, विच जिसको यूपीएससी ने रिसेंटली बहुत ज़्यादा फोकस देना शुरू किया, आप एग्रीकल्चर के टॉपिक्स को कवर करें, करंट अफेयर से कवर करें। आप ज्योग्राफी की माजिद हुसैन की बुक से भी एग्रीकल्चर को कवर कर सकते हैं। खासकर इंडियन ज्योग्राफी की बुक में जो एग्रीकल्चर टॉपिक कवर्ड है, आप उसके थ्रू यू जस्ट गो थ्रू दैट। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगेन आई बिलीव एनसीईआरटीज़ आर मोर देन इनफ। समबडी मेंशन लूसेंट, आप लूसेंट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर्स से भी एक बार जस्ट गो थ्रू इट एंड बी वेरी अपडेटेड अबाउट द करंट अफेयर्स, करंट हैपनिंग्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आर्ट एंड कल्चर के लिए यू कैन गो थ्रू नितिन सिंघानियाज बुक। इट गोज फॉर सेलेक्टिव रीडिंग, पूरे बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एनसीईआरटी की बुक है आर्ट एंड कल्चर पे, आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ। इकोनॉमिक्स के लिए देर आर स्टैंडर्ड बुक्स। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह या फिर श्रीराम आईएएस की इकोनॉमिक्स की बुक है, 2 पार्ट में है। इट इज़ अ वेरी गुड बुक। मैंने पर्सनली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बेसिक टॉपिक्स जो होते हैं इकोनॉमिक्स के, उनको कवर करने के लिए आई हैव गॉन थ्रू शंकर गणेश मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट वेरी कंसाइज बुक दैट यू कैन रेफर टू। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे आप कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बजट पे अपना ध्यान रखिए। इसके अलावा देर इज़ अ बुक एवरी ईयर, देर इज़ एन इंडिया ईयर बुक दैट इज़ रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। जस्ट गो थ्रू दैट. So these are the books. Polity, I think it is unquestioned. There's one book which is very, very, very important. It is the Gita of UPSC aspirants, लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। इसके अलावा आप डी बासु भी पढ़ सकते हैं। सर एनसीईआरटी इस बुक के लिए कितना टाइम देना चाहिए? जितने टाइम में आप समझ जाएं। एनसीईआरटी की समझ बहुत ज़रूरी है। जब तक आपने एनसीईआरटी को अच्छे से समझा नहीं है, इट इज़ पॉइंटलेस टू मूव ऑन टू नेक्स्ट बुक। इट इज़ वेरी फंडामेंटल। अगर आप इस साल का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर भी देखें, देयर हैव बीन क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। फर्स्ट 10 पेजेस ऑफ एनसीईआरटी दे आस्क अ क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी को आप समझें। एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो क्या मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है पाठक जी। यूपीएससी क्लियर करने के लिए इंग्लिश ही सोल रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश अच्छी आए, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि आप जो भी कहना चाहें इंग्लिश में या हिंदी में, आप उसको ऐसे कहें कि सामने वाला उसको समझ सके, बेहतर समझ सके। तो दैट इज़ व्हाट आई सेड। बट हाँ ये भी एक रियलिटी है कि इफ़ यू आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में बहुत ही कंफर्टेबल हैं, तो आपके लिए ये जो यात्रा है, ये जो जर्नी है, ये ईजी हो जाएगी।
नेक्स्ट, सर क्या कॉलेज बैकग्राउंड भी मैटर करता है? बिल्कुल भी नहीं मैटर करता है, कॉलेज बैकग्राउंड नहीं मैटर करता है, बट आपने जो कॉलेज के 3 साल या 4 साल आपने कॉलेज में बिताए हैं उसमें आपने क्या कुछ सीखा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने आपके कॉलेज का जो जो भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में भी आपने ग्रेजुएशन किया है उसके बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है तो एक प्रॉब्लम है। सो यू शुड ऑल्सो बी कंफर्टेबल विथ वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन कॉलेज। सो कॉलेज का बैकग्राउंड नहीं उतना मैटर करता है। सर हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, व्हाट्स द बेसिस? फर्स्ट थिंग फर्स्ट थिंग टू इम्प्रूव राइटिंग प्रैक्टिस इज़ टू राइट मोर एंड मोर। आंसर्स लिखिए, उसको आप उन आंसर्स को आप स्टैंडर्ड आंसर से टैली कीजिए। देर आर सो मैनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हु कम अप विथ क्वेश्चन पेपर्स विच हैव स्टैंडर्ड मॉडल आंसर शीट्स टू देम। उन आंसर से आप उनको टैली कीजिए, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी, जो भी आप आंसर्स लिखते हैं उनको आप किसी वेल नोन पर्सन से, समबडी हु इज़ डीलिंग इन टू यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आप उनसे वो आंसर चेक करवाएं। गेटिंग योर कॉपीज चेकड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज़रूरी है, यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं ज़रूरी है बट मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट। मेंस के संदर्भ में, इन टर्म्स ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, आप यू राइट लॉट ऑफ आंसर्स एंड गेट इट चेक्ड। गेट गाइडेंस, स्पेसिफिक गाइडेंस अपने लिए आप लीजिए और उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। और तीसरी चीज़ ये भी है कि आप टॉपर्स के आंसर बुकलेट्स देख सकते हैं और देखिए कि व्हाट एक्स्ट्रा यू कैन डू इन इट, आप उसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं। टॉपर्स का के आंसर शीट्स देखिए वो कैसे फ्लो चार्ट बना रहे हैं, वो कहाँ पे मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन कैसा है, उनका कंक्लूजन कैसा है। तो दिस विल हेल्प यू एक स्टार्ट करने में, बट देन रेस्ट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आप कितना ज़्यादा आंसर प्रैक्टिस करते हैं, कितना ज़्यादा आप लिखते हैं। भैया मैंने 12th पास किया है, मैं अभी क्या करूं? इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, स्टार्ट राइटिंग गुड आर्टिकल्स। 200-250 वर्ड्स में आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स, सीखने की कोशिश कीजिए, एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। डिबेट कम कीजिए और उन चीज़ों पे पॉन्डर अपॉन ज़्यादा कीजिए, ब्रेन स्टॉर्म कीजिए। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सर क्या सिर्फ कोचिंग के नोट्स से सिलेक्शन मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। समबडी आस्क्ड मी, कोचिंग के नोट्स से सिलेक्शन, इज नोट्स इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर? नोट्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर, बट हाँ ये आपका काम ईजी कर देता है। कोचिंग के नोट्स हों या आपके खुद के नोट्स हों, ये आपके रास्ते को आसान बना देता है, लेकिन फिर भी दे आर जस्ट 20% ऑफ योर प्रिपरेशन। उससे आगे आपका रिविजन कितना है, आप चीज़ों को कितने अच्छे से समझ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी ने मुझे बोला कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स मैं ले आता हूँ, क्या उससे हो जाएगा? आई डोंट बिलीव दैट। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ नोट्स पढ़ लें और हो जाएगा। जब तक आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी नहीं होगी, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की अच्छी नहीं होगी, इट विल बी डिफ़िकल्ट। सो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। नोट्स इकट्ठा मत कीजिए, बुक्स किताबों का पहाड़ मत बनाइए अपने घर पे, और सोशल मीडिया से दूर रहिए। तो दीज 3 थिंग्स आई वुड लाइक टू से अबाउट नोट मेकिंग। सर आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है? अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सबसे यूजलेस क्वेश्चन होना चाहिए। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट टाइम किलिंग एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन योर लाइफ। इनसे दूर रहिए, यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी। सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर जोग्राफी? मैं अपने बारे में बात करूँगा। आई एम अ कंप्लीट न्यू बी व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जोग्राफी। आई फर्स्ट रेड एन सी आर टीज़ मैंने पढ़ा, पहली बार में तो मुझे समझ ही नहीं आया। आई रेड इट अगेन एंड इट बिकेम ईजी। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड आसान हो गया मेरे लिए। देन आई वेंट थ्रू मजीद हुसैन पढ़ी। तो जोग्राफी के लिए कुछ बुक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ एन सी आर टीज़ कवर कीजिए। उसके बाद मूव टू द स्टैंडर्ड बुक, मजीद हुसैन या फिर सविंदर सिंह में से एक आप पिक कर सकते हैं। these both of these are good books. I would suggest you go for Majid Hussain. So Majid Hussain, आप पर्सनली, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी को तभी अडॉप्ट कीजिए जब इट इज़ हेल्पफुल टू यू। एवरी यूपीएससी क्लियर्ड पर्सन विल हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। आपकी भी अपनी अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यू शुड हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑफ योर ओन। हाँ, आप दूसरों की स्ट्रैटेजी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। देन आफ्टर दैट कम्स एग्जाम प्रिपरेशन डेज में आई यूज टू रेफर टू स्पेक्ट्रम जोग्राफी ऑप्शनल बुक। सो दैट्स अबाउट इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट सोर्स टू कवर करंट अफेयर्स फॉर वर्किंग एस्पिरेंट्स। दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं करंट अफेयर्स कवर करने के। पहला तो है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का करंट अफेयर्स मैगजीन उठा लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट। दूसरा ये है कि हर रोज़ शाम में देर आर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विच आर प्रोड्यूसिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। आप उसके थ्रू जाइए, उससे अपने नोट्स बनाइए, डेट बाई वाइज उन नोट्स को संभाल कर रखिए और उसको वीक के एंड पे रिवाइज कीजिए। दैट्स हाउ यू कैन go for current affairs. Next question is best books for economics. Three books I would suggest. The first one is Shriram IS ki macroeconomics book. Second I would suggest is Ramesh Singh. And third and most concise book on macroeconomics is Shankar Ganesh, which will give you basic definition and understanding of all the macroeconomics keyword. So Ashraf Ali, three books. The first one is Shriram IS economics book. Second is Ramesh Singh Indian economics, and third one is Shankar Ganesh. Mains preparation के लिए there is a book by Datta and Sundaram. If anyone wants to note that down, Datta and Sundaram, that is the book. You can refer to that book as well. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th के बाद से कोचिंग करना चाहिए। देखिए, कोचिंग इज़ योर पर्सनल डिसीजन। आई एम पर्सनली नॉट इन फेवर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट आई एम इन फेवर ऑफ गाइडेंस। तो अगर आपको अच्छी गाइडेंस कहीं से मिल जा रही है, बी इट कोचिंग इंस्टीट्यूट और बी इट सम मेंटोर, यू गो फॉर इट। देर इज़ नो पर्टिकुलर टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट कोचिंग। द अर्लियर द बेटर। जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन शुरू कर दें उतनी जल्दी सही है। बट आई एम नॉट होल हार्टेडली इन फेवर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही पढ़ने के बाद आप यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। सत्य प्रकाश पटेल हैड आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। उन्होंने मेरे से ये सवाल किया था कि सर, कोचिंग के नोट्स पढ़ लेने से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा? और उनका इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसा कहते हैं कि जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, जो आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नोट्स आपके लिए सफिशिएंट हैं। दो चीज़ें हैं। पहला ये कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दे मोर और लेस दे ट्राई टू कवर द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। वो सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं। सो येस, दोज नोट्स आर गुड इनफ, वो आप पढ़ाई कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम उन नोट्स के बेसिस पर, अकेले उन नोट्स के बेसिस पर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उन नोट्स के साथ साथ आपकी समझ जो है टॉपिक को लेकर, जो भी देश दुनिया में चल रहा है उन टॉपिक्स पे जो आपकी समझ है, उसको बनाने के लिए एनसीईआरटीज़ और कुछ बेसिक बुक्स हैं वो ज़रूरी हैं। से फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत इज़ अ बुक विच मोर और लेस कवर्स होल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। सो येस, कोचिंग के नोट्स आपको ऐड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, बट सिर्फ कोचिंग के नोट्स पे आई पर्सनली फाइंड इट डिफ़िकल्ट। सो मेरा ये मानना है। Sir, sociology optional material. Sorry, brother, I am not from sociology optional, so I think I won't be able to help you in this. But internet पे I think some of the कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो redundant हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप खुद खोजने की कोशिश कीजिए। जैसे ऑप्शनल के लिए बुक लिस्ट या किसी एक सब्जेक्ट के लिए बुक लिस्ट, ये इंटरनेट पे रेडिली अवेलेबल है। कहीं भी आप गूगल में टाइप करेंगे, आपको पता लग जाएगा कौन सी बुक्स लोग यूपीएससी प्रिपरेशन में पढ़ रहे हैं। अगर आपको उनमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे सामने रखिए और मैं उसमें हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आप मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें। सर, टिप्स फॉर वर्किंग एस्पिरेंट। सो आई वॉज अ वर्किंग एस्पिरेंट। आई वुड ओनली सजेस्ट कि पीपल हु आर वर्किंग एंड स्टिल वॉन्ट टू प्रिपेयर, इट्स नो हार्म इन प्रिपेयरिंग। यू कैन क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन। कोई बहुत बड़ा तोप ये नहीं है, ठीक है। हाँ, लक एक फैक्टर है, लेकिन अगर आप 4, 5, 6 घंटे अगर आप डेली दे सकते हैं तो धीरे धीरे यू विल बी एबल टू अडॉप्ट टू योर वर्क कल्चर एज वेल एज प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। समबडी हैज़ आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि सर आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। दो इट डज नॉट कंसर्न योर यूपीएससी प्रिपरेशन, आई एम पोस्टेड इन दिल्ली एनसीआर रीजन राइट नाउ। सर, फर्स्ट ईयर कॉलेज से कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, प्लीज़ गाइड। आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। देखिए, अगर दो चीज़ें, अगर आप कॉमर्स को अपना ऑप्शनल लेकर चुन के चल रहे हैं तो आप कॉमर्स को अच्छे से पढ़ें, यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करें, उसको अपने स्टडी टेबल के सामने लगाएं
और जो भी टॉपिक आप पढ़ें आप देखें कि वो यूपीएससी सिलेबस में है या नहीं, आप उनको अच्छे से कवर करें, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स पूछें, अपने ऑप्शनल के नोट्स अपने कॉलेज के 3 साल के टेन्योर में ही बना लें, और दूसरी करंट अफेयर्स पे फोकस करना अभी से शुरू कर दें। हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ें, ये एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। और आप जब किसी मुद्दे को, किसी टॉपिक को, किसी इशू को अगर आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, उसके ऊपर अपना एक छोटा सा एनालिसिस, 5 लाइन का, 10 लाइन का, 2 पन्ने का एनालिसिस बनाने की कोशिश करें। इट विल अगेन हेल्प यू। नेक्स्ट आई विल टेक 2 or 3 मोर क्वेश्चंस, उसके बाद आई कैन जस्ट वाइंड दिस अप। आप if somebody wants to get in touch with me regarding UPSC related guidance, specific guidance, ऐसे जनरल क्वेश्चंस के आंसर आपको कहीं भी मिल जाएंगे, बट अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ जानना हो तो आप श्योरली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी टाइम इंडिया के थ्रू। दे हैव कनेक्टेड मी टू यू राइट नाउ, एंड आई वुड लव टू हेल्प समवन, दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, I am a very average student. I have cracked this examination with little bit of hard work and lot of luck. तो luck भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। So I will take 2 or 3 more questions. सर खुद के नोट्स बना सकते हैं क्या? As I have mentioned earlier also, जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, जो भी आपने पढ़ा है आपको उसको कंसाइज या समराइज करने की हैबिट हो जाती है, एंड दैट वे इट विल हेल्प यू इन योर मेंस एग्जामिनेशन। दूसरा, अगर आप लिखने की हैबिट में रहेंगे, डेली अगर आप नोट्स बना रहे हैं, तो इट विल हेल्प यू अगेन इन योर राइटिंग प्रैक्टिस, जो मेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा ये कि जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपके द्वारा ही लिखे गए पन्ने हैं, जिन उन पन्नों पे जो भी लिखा है वो आपने लिखा है, तो आप इजीली उसको पढ़ के आगे बढ़ सकेंगे। और जब आप प्रीलिम्स के तैयारी में जुट जाते हैं, जब 1-2 महीने रह जाते हैं, आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो रिवीजन के लिए आपको अपने नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। सर क्लास 12 से पीसीबी लिया है तो यूपीएससी में जाना है, तो क्या कर सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई। अगर आपने पीसीबी लिया है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसको आप अच्छे से पढ़िए, बेसिकली बायोलॉजी अच्छे से पढ़िए, बिकॉज आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स में दे आर आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इनरोड्स कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस ट्रिकी होते जा रहे हैं। तो अगर आपने पीसीबी लिया है, फोकस करें कि आप एनसीईआरटीज़ अच्छे से पढ़ें, एनसीईआरटीज़ आप कवर कर लें स्कूल ख़त्म होने के पहले, खासकर साइंस का पोर्शन और वो चीज़ें जो आपको क्लास में पढ़ाई जा रही हैं। दूसरा, न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी गुड हैबिट, तो ट्राई टू इनकलकेट दैट हैबिट इन योर सेल्फ एंड ट्राई टू सी कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, अगर आप बोर हो रहे हैं या पढ़ाई से थक गए हैं, वॉच गुड डॉक्यूमेंट्रीज़, वॉच मूवीज़ विच गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चर ऑफ दिस कंट्री। ऑल इंडिया रेडियो को सुन सकते हैं आप, राज्यसभा टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपकी क्यूमुलेटिव नॉलेज, जो टोटल आपका नॉलेज है, वो थोड़ा इंक्रीज़ होगा, एंड इट विल मोर और लेस हेल्प यू विथ योर यूपीएससी प्रिपरेशन आफ्टर योर कॉलेज। Okay, I will take one last question. Sir, I am from arts background, so how to cope up with science and technology? See, I will personally tell you that साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं यूपीएससी में, वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल और टेक्निकल नहीं होती हैं, वो करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं और फैक्चुअल चीज़ें होती हैं। फैक्चुअल एज इन, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, अगर आपने 10th तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ा है, अगर आपको बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पता है, तो आपको ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं कि आपका डोमेन क्या है, व्हाट वाज योर डोमेन। आपने आर्ट्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन करा है या कॉमर्स बैकग्राउंड से करा है, लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें आप पढ़ें एनसीईआरटी में, 9th 10th 8th की एनसीईआरटी, 12th की बायोलॉजी बुक, अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो आप उनको समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत यूट्यूब पे जाइए, उस टॉपिक के बारे में आप पढ़िए। जैसे अगर आपको से फॉर एग्जांपल आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट गो टू यूट्यूब एंड टाइप व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जस्ट लुक फॉर इट, एंड दैट्स हाउ यू प्रोसीड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं होता है, फैक्चुअल होता है। फैक्चुअल मीन्स वो चीज़ें जो आप याद रख सकते हैं, तो इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर आस्किंग अबाउट बीबीए ग्रेजुएट्स,
Management is one subject that you can go for, management, because you have already started reading that, and I think everybody who pursues BBA has more or less an idea that okay, they want to go for MBA. तो management एक subject है that you can pursue, though it is very tricky subject. I have friends who have pursued management, but yes, you can go for it because it is your subject, which it is from your domain, so that you can do. देन somebody has asked, सर CSAT के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स और गाइडेंस देने की दया करें. सो आई विल टेल यू, CSAT जो है उसमें 3 सेक्शंस हैं. देर आर 3 सेक्शंस टू इट. फर्स्ट वन इज़ पैसेज. पैसेज के लिए आपको जनरल प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मॉक टेस्ट ट्राई करें, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट ट्राई करें. देर आर अरिहंत की एक बुक आती है जो आपको अरिथमेटिक एबिलिटी जो भी है, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनकी आप प्रैक्टिस उसमें कर सकते हैं. टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लीजिए. CSAT में जो टॉपिक्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग की, और उससे रिलेटेड ट्रिक्स और शॉर्टकट्स यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो देते हैं. आप उनके थ्रू जाइए एंड देन मॉक्स लगाना शुरू कीजिए. CSAT इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर, सो फोकस दैट योर एम शुड बी क्वालिफाई दैट पेपर, नॉट एस दैट पेपर. CSAT टाइम के साथ बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो रहा है, तो अगर आप से फॉर एग्जांपल पैसेज और रीजनिंग एबिलिटी पे ही डिपेंड करते हैं और मैथ्स को टोटली इग्नोर कर देते हैं, तो अगेन इट कैन कॉस्ट यू. मे बी से फॉर एग्जांपल लास्ट 2 साल से पैसेज हैज़ बीन वेरी ट्रिकी, तो इफ़ यू रिलाई ऑन वन थिंग एंड इग्नोर द अदर, इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू. तो ऐसा ना करें. टॉपिक्स की लिस्ट बना लें, उन टॉपिक्स के बारे में बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं. मुझे ये बुक्स से ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि बुक्स मैं तब टच करता हूँ व्हेन वंस आई हैव अ फ्यू शॉर्टकट्स. मैंने शॉर्टकट्स समझ लिया है कि कैसे क्वेश्चन बना. जैसे एक क्वेश्चन आता है नाव वाला, बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द ट्रिक, जस्ट गो टू सम मॉक टेस्ट, टेक अ मॉक टेस्ट, उससे वो क्वेश्चन उठाइए एंड ट्राई टू सॉल्व दैट. अगर आप उसकी प्रैक्टिस में हैं तो यू विल बी एबल टू क्वालिफाई फॉर CSAT. So don't worry about it, but yes, take it very seriously. How to cover governance? See, I will tell you, बहुत simple है. There is enormous amount of study material that is available. If you want to choose a book for every topic that UPSC wants to, wants your expertise in, you will never be able to cover the syllabus. So what you should do is, you should know the basic of a topic from a good book, and then try to add it on to the current affairs and whatever is the burning issues that are going on in the country. Say for example governance. If you have a fair idea of Indian polity, अगर आपने लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़ी है, if you have prepared with Lakshmikant very well, just try to implement the sections of this constitution, the articles of this constitution, the laws that are being implemented in the country in the current perspective of governance. जो भी चीज़ें चल रही हैं. उसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 and 51, that you have to read, that you have to specifically read. You can read it through internet. Instead of going through a bulky book, I would suggest go through internet, make your own notes and read it via them. Again, D.D. Basu की book आप पढ़ सकते हैं. You can go for D.D. Basu. There is a book on governance by Lakshmikant as well. You can go with that as well. But I would suggest that restrict your number of books and use it in terms of analysis. जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, whatever you read in the newspaper, try to implement the knowledge of Indian polity and constitution into governance. That will suffice for you. Answer writing के लिए try to go through YouTube. See, there are so many videos. I have already discussed about it. So which subject is the best option? The subject in which you are most comfortable is your best option. जिस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होकर आंसर लिख सकते हैं वो बेस्ट ऑप्शन है. और क्योंकि हम सब अलग हैं, तो आप इस बात को मान के चलिए कि सबके लिए बेस्ट ऑप्शनल्स अलग हैं. दैट्स वाई UPSC ने इतने सारे ऑप्शन दिए हैं आपको. ओके, ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन. सर LLB के साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए, अगर आपने LLB किया है तो कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं. इंडियन पॉलिटी की समझ आपको होगी, कुछ करंट लॉज आपको समझने में बेटर होंगे, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़ जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं देश में, उनमें कौन सा लीगल एंगल है उसका, वो आपको ऑलरेडी समझ होगी.
तो आप बेटर प्लेस्ड हैं, इनफैक्ट आप लकी हैं अदर पीपल से दैट यू हैव अ बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट यस, बाकी सब्जेक्ट्स आपके लिए भी सेम है, ठीक है। LLB इज़ अ बिग एड ऑन। जब आप सर्विसेज में आएंगे आपको पता लगेगा कि अगर आपके पास LLB की डिग्री है, अगर आपके पास लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, तो आगे की चीज़ें, ट्रेनिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सो गो थ्रू दैट एंड इट्स गुड। Okay, on that note, I would like to end this session. There are so many questions. I am sorry if I have not taken a few. जैसे किसी ने पूछा प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, मॉक टेस्ट यार, सिलेबस कवर करें और मॉक टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। अगेन मैंने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे एंड करने की कोशिश करूँगा कि ये एग्ज़ामिनेशन जो है, दिस एग्ज़ामिनेशन इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू 800 ऑड पीपल टू बी एन ऑफिसर एवरी ईयर। ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि आप एक परीक्षा पास करके एक अफसर बन गए हैं, बहुत ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप किस मोटिव से अफसर बन गए। बी द ऑफिसर दिस कंट्री इज़ looking for. Okay, so thank you so much, and thank you so much for UPSC Time India for giving me this opportunity to interact with you all, and good luck। अच्छे से प्रिपरेशन करें। You can get in touch with me via various social media platforms, but I would prefer that restrict yourself, ज़्यादा social media का इस्तेमाल ना करें। Thank you and